Welcome to the third session, guys. In last two sessions, we have discussed what is national income, what is economic territory, and who is a normal resident. In today's class, we will be discussing the difference between a citizen or national and a resident. Let us start. Citizen or national, a person who legally belongs to a country. How? ए बाय बर्थ, अगर आप किसी देश में पैदा हुए हैं तो आप बाय नेचुरली यूल बिकम अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. और बाय ऑफिशियल रिक्वायरमेंट, जब आप बाय ऑफिशियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो उससे हम बोलते हैं नेचुरलाइज सिटीजन. एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स? इसके बड़े सारे तरीके हैं. एक तरीका हो सकता है कि एक प्रेस्क्राइब टाइम स्पेंड करें आप किसी देश में से 5 years और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. बी, आप किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. देयर आर अदर वेज एज वेल. नाउ, सिटीजन का होने का फायदा क्या है? वेल, ही हैज फुल पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट एंड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस. सो दिस इज अ सिटीजन. Who is a resident or a normal resident? A person who is legally living or working in a particular country. Well, precisely हमने जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन किया था वो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा. A resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country where he lives or is located. By center of economic interest means that the resident must be living or located in a particular country and he is carrying out the basic economic activities of earning, spending and accumulation from the location. So this is the basic difference between a citizen and a resident. One example for you guys. Suppose an Indian working in USA and he's there for from last 2 years. So he'll be considered as a resident of USA and a citizen of India. Now we will be discussing some examples of non-residents for a particular country. Well, in this case, even though the person or institutions are living or located in a particular country, but they will still not be considered as a resident of that country. Let us look at some of the examples. International organizations like World Bank, WHO, IMF, they are treated as residents of international area, not India. For example, that particular country is India. So even though there is an office of WHO in India, it is still not considered as a resident of India because it should be considered as a resident of international area because they belong to international territory, not domestic territory. Now, second point, it is very interesting. Employees of international organizations are considered residents of the country which they belong and not the international area, provided their stay is less than 1 year. बट अगर उनका स्टे 1 year से ज़्यादा है और इंडिया में वो WHO के ऑफिस में काम कर रहे हैं, इन दैट केस उनको आप इंडिया का ही रेजिडेंट मानेंगे. Workers from across the border who cross borders regularly for work, they are treated as residents of the country where they live. मैं 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ देता हूँ. आप अगर यूरोप जाएं कभी तो आप वहाँ पाएंगे कि एक देश से दूसरे देश जाना काफ़ी आसान है. तो ऐसे वहाँ बहुत लोग आपको मिलेंगे जो रहते तो जर्मनी में फॉर एग्जांपल, पर काम जो है वो स्विट्ज़रलैंड में करते हैं या फ्रांस में करते हैं, पेरिस में करते हैं. और ऐसे लोग सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं दूसरे देश, एक शॉर्ट स्टे लेते हैं वहाँ पर और अपने देश वापस आ जाते हैं. तो इन सच केसेस वो जिस देश को बिलोंग करते हैं उसी के रेजिडेंट माने जाएंगे. आइए एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज कुछ इंडियंस हैं जो नेपाल में पावर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने जाते हैं, 15 दिन वहाँ पर काम करते हैं और वापस आ जाते हैं. 7 दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर 15 दिन वहाँ काम करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने देश. तो इन दिस केस एज वेल, वो जो लोग नेपाल में गए हैं पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, दे शुड स्टिल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. फोर्थ, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज. आपको अगर मेरी सेकेंड क्लास आपने पढ़ी हो डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो हमने उसमें बोला ही था एम्बेसीज, कंसुलेट, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन इट्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. तो बाहर की एम्बेसी का जो स्टाफ है वो भी हमारा रेजिडेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है और वो व्यक्ति भी हमारा रेजिडेंट माना नहीं जाएगा. फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर्स,
अब सपोज आपको शायद जानकारी हो कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत होता है, स्पेशली काफ़ी ईरान वगैरह से काफ़ी लोग आते हैं दिल्ली में अपना इलाज कराने। तो अब वो विजिटर्स हैं यहाँ पर, तो और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं सपोज। तो फिर ऐसे लोग, दो वो आपके देश में हैं बट स्टिल दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली कोई घूमने आया है यूएसए से या रशिया से, वो ताजमहल गया घूमने, लाल किला गया घूमने, सो दो दे आर here in India, but they should still not be considered as residents of the country. बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, यू कैन टेक माई नोट्स, आप मेरे नोट्स में से एम्पल प्रैक्टिस आपको मिल सकती है। फॉर दैट यू कैन व्हाट्सएप मी, माई नंबर इज 9811439887। So our next topic is now stock and flow. देखिए बेटा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो स्टॉक से कई बार बच्चे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, ओके इट मीन्स रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल। आई एम अफ्रेड इकोनॉमिक्स में आपको स्टॉक उस तरह से नहीं करना जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं। यहाँ पर स्टॉक का क्या मतलब है वो देखिए। इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या इसका मतलब है बताते हैं। इट रेफर्स टू वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ हाउसेस इन दिल्ली ऑन 1/1/20। बेटा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखे जाएं उन्हें हम कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया आपको कि ऑन 1/1/20 कितने नंबर ऑफ हाउसेस इन दिल्ली हैं, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बोला जा रहा है, इसलिए इसको आप स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। हाउ, पहले फ्लो बताता हूं फिर आपको ये पॉइंट सिखाता हूं। फ्लो, it refers to those variables whose magnitude is measured over a period of time। यहाँ क्या था, at a point of time, वो है over a period of time। For example, construction of new houses during 2019 and 20, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर देखा जा रहा है, इन दिस केस अ ईयर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम फ्लो कहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इट हैज अ टाइम डायमेंशन। इट कुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग 1 डे, ड्यूरिंग 1 आवर। वेयरएज इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही देखा जा रहा है। एक एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। आप हमें बता दीजिए आपके हिसाब से स्टॉक और फ्लो के लिए हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपने बताना है दिमाग लगा के कि वो स्टॉक होना चाहिए कि फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/20। population of India as on 31/3/2020। The answer is stock। आइए एक और छोटा सा टेस्ट लेते हैं। स्टॉक क्यों, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चों। अब यहां मैंने आपके लिए दो चीजें लिखी हैं, कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोच के बताइए दोनों स्टॉक है, दोनों फ्लो है, या एक स्टॉक और एक फ्लो है। Well guys, capital should be considered as stock. Why? आप अगर कॉमर्स से हैं तो आप जानते हैं कि बैलेंस शीट बनती है as on या as at 31st March, और उसी पर आपका कैपिटल का वैल्यू निकलता है। तो कैपिटल इज ऑलवेज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। What is interest on capital? It is flow. Why? Because you'll be charging your interest on capital say for 3 months, say for 6 months, say for a year. तो वहां टाइम डायमेंशन आ गया बेटा, दैट्स व्हाई इट शुड बी कंसीडर्ड एज फ्लो। देयर इज वन मोर पॉइंट विच वी शुड बी डिस्कसिंग, तो आइए अब उसको डिस्कस करते हैं ताकि और एग्जाम्पल अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हमें दिक्कत परेशानी ना हो। सो बेटा वी हैव वन मोर पॉइंट हियर। स्टॉक में हम कहते हैं इट इज अ फिक्स्ड और स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जबकि फ्लो को हम कहते हैं इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। आइए एग्जांपल से सीख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, डोंट यू थिंक दिस डिस्टेंस इज गोना बी फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपको इस तरीके से भी सीखना है स्टॉक फ्लो, और पिछला जो मैंने तरीका बताया उससे भी। रीजन, पेपर में आपके इम्तिहान में कुछ आपको केस स्टडीज दे सकते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि पहचानो कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी स्टॉक है, और कोई फिक्स्ड है अगर तो वो भी स्टॉक ही है। फ्लो, अब स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई,
डोंट यू थिंक इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो फिक्स थोड़ी ना रहेगी, कभी रोड खाली होगा तो 100 की स्पीड पे चलेगी, थोड़ा सा कंजस्टेड होगा तो मे बी 60 की स्पीड पर चले। तो स्टॉक इज अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। For example, distance between Delhi and Mumbai, which is fixed, that's why stop. Speed of a car going from Delhi to Mumbai, that speed may vary, that's why it is not fixed, it is dynamic, and it should be considered as a flow concept.